أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وسخر لهم تكبيرا. اللهم صل على محمد محمد رسول میرے محترم سامعین، ناظرین اور برادران و خواہران، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی آپ سے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ مثبت وجوہات ہیں اور کچھ منفی وجوہات ہیں، کچھ پازیٹیو ریزن ہے اور کچھ نیگیٹو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی کچھ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ بہت اطمینان سے سنیے گا ان باتوں کو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں وہ تاریخ شہادت سے منسلک 15 شوال اور 25 شوال، شہادت جو ہے وہ 15 شوال سے 36 شوال کی شہادت کے مناسبت سے بناتے ہیں۔ اور اسی درمیان جہاں بھی ہم شکریہ کرتے ہیں، ویڈیو کرتے ہیں، رکھتے ہیں اور ہمارا اور محبت آپ دوسرے نام خریدتے ہیں کے بعد کا مذہب ہے کے بعد وہ سب سے مشہور بہت سارے لوگوں کو شہادت کی مجلس پڑھنی ہو یا کل رات کو مجلس پڑھنی ہو تو آپ لوگوں کے لیے جسٹ انفارم دا پبلک اور آڈینس، یعنی پبلک کو اور جو سامعین ہے ان کو آگاہ کرنے کے لیے ایک ہمارا دستور ہے، ہمارا طریقہ کار ہے جو ہمیشہ ہم اپناتے ہیں۔ جب کسی معصوم کی ولادت کی مناسبت سے یا شہادت کی مناسبت سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے خطبے کے بعد اس معصوم کی لائف ہسٹری بریفنگ کرتے ہیں۔ بریفنگ کا مطلب یعنی ان شارٹ بہت مختصر ایک سوانح حیات پیش کرتے ہیں کہ ہم جو آج یہ محفل کر رہے ہیں یا ہم آج جو یہ مجلس کرنے جا رہے ہیں وہ کس سلسلے میں، کس ذات کے سلسلے میں، یعنی اس کے تعارف بولنا چاہیے، انٹروڈکشن۔ تو میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ روایت نبی نے فرمایا کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ کی کچھ دعائیں ہیں جو کبھی قبول نہیں، تو کچھ چیز کو بیان کرنے سے پہلے میں امام جعفر علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اس سے آپ کو بہت معلومات ملے اور ایک اطمینان بخش تقریر آپ کل رات یا پرسوں دن میں کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا کہ یہ تقریریں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ذریعے باتیں دوسروں تک پہنچیں گی انشاءاللہ۔ جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہ باتیں پہنچ جائیں گی۔ ابھی آپ غور سے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سنیے، بہت ہی بریفنگ 5 سے 6 منٹ میں آپ سنیے، غور کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ بایوڈیٹا کم از کم کتنا ہر ایک شیعہ کو اپنے امام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کی ولادت یا شہادت منا رہے ہیں وہ کون ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں۔ آپ کا نام جعفر ابن محمد ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ابو عبداللہ الثانی لکھا جاتا ہے احتیاطاً کیونکہ ابو عبداللہ الاول امام حسین علیہ السلام ہے اور ابو عبداللہ الثانی امام
जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। आपके अलकाबात में से सादिक, साबिर, ताहिर, फाजिल, खास करके सादिक जो हमेशा आपके नाम के साथ इस्तेमाल होता है इमाम जाफर सादिक के नाम से, और साबिर सब्र करने वाले, ताहिर पाक, फाजिल तमाम फजीलतों के मालिक, और भी बहुत सारे अलकाबात है जो इमाम जिन अलकाबात के जरिए मशहूर है, मारूफ है। मुरव्विज अल फिक्र जाफरिया और मुरव्विज अल फिक्र अहले बैत के नाम से भी आप दुनिया में मशहूर मारूफ है। आपकी तारीख विलादत 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी है। इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 17 रबीउल अव्वल जो उनकी जद की भी विलादत की तारीख है 83 हिजरी में। आपकी जाए विलादत जो है वो मदीना है, और आपकी मुद्दत इमामत जो है वो 34 साल की है, याद रखिएगा। 114 हिजरी में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद से 148 हिजरी तक आपने इमामत की जिम्मेदारी निभाई, यानी फरीज़त अंजाम दिया। लिहाजा आपकी मुद्दत इमामत जो है वो 34 साल है, और आपकी शहादत जो है वो 25 शव्वाल, दो रवायत जैसा हमने बताया मशहूर है हमारी इधर, एक 15 शव्वाल, एक 25 शव्वाल, यानी परसों शनिचर के दिन। तो 25 शव्वाल 148 हिजरी में आपकी शहादत हुई, और मंसूर दवानगी ने आपको शहीद किया था। आपकी मदफन जो वो जन्नतुल बकी है, मदीने में है, और ज्यादातर जिंदगी आपने मदीने में गुजारी। बीच बीच में सफर करते रहे मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन आपकी जो रिहाइश मानी जाती है वो मदीना है। आपके वालिद माजिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, वालिदा माजिदा उम्मे फरवा है, और आपकी जो शरीक हयात है या बीवी जो मशहूर है उनमें फातिमा और हमीदा का नाम सर फहरिस्त है, और बाज़ रवायत के एतबार से हमीदा जो है वो कनीज़े खास की बहरहाल तफसील है। और आपके औलाद में से अब यहाँ मैं कुछ बातें कहूँगा जो आपके लिए बहुत मुफीद होंगी, इसको गौर से सुनिएगा। आपके औलाद में से इस्माइल है, इस्माइल से इस्माइल फिरका दुनिया में मशहूर है। ये इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े फर्जंद थे जो उनकी जिंदगी में वफात पा गए थे, और सिलसिला इमामत के लिए नबी पहले ही पेशेंगोई कर चुके थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम पहले इमाम होंगे, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, वल अइम्मतु बादी इस्ने अशर कुल्लुहुम मिन कुरैश, हमारे बाद 12 इमाम होंगे और ये सब के सब कुरैश में से होंगे, ठीक है। और अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब वसानिहुम अल हसन वसालिसुहुम अल हुसैन, इस तरह से नाम बताते बताते आपने फरमाया था वसादिसुहुम जाफर as-सादिक, वसाबिउ सातवां जो इमाम होंगे मूसा अल-कादिम, मूसा इब्न जाफर अल-कादिम, इस तरह से नबी ने पेशगोई कर दी थी। लिहाजा वहां पर अब ये सवाल नहीं उठता कि बड़े फर्जंद इमाम होंगे या छोटे फर्जंद इमाम होंगे। जब नबी ने पेशगोई कर दी खुदा की तरफ से, तो वही इमाम होंगे जिनके बारे में पेशगोई है। लिहाजा यहाँ लोगों को गलतफहमी हुई, और उनका कहना है चूंकि बड़े फर्जंद इमाम होते आए हैं, लिहाजा इस्माइल इमाम है। अब इस्माइल इमाम की जिंदगी में फौत हो गए, तो इस्माइल के बेटे अब्दुल्ला को उन्होंने इमाम मान लिया, याद रखिएगा। तो इसलिए इस्माइली फिरका कह लेते हैं। और इमाम जाफर दूसरे फर्जंद जो है वो अब्दुल्ला अल अफ्ताह, इसको अब्दुल्ला अल बाही, वो लोग जो सीरिया गए, यासीन साहब बेहतर जानते हैं, बाबू सगीर में एक कब्र है अब्दुल्ला अल बाही के नाम से, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के फर्जंद अब्दुल्ला अल बाही, याद रखिए। इसी से बोहरा फिरका है, ये बाहिर से है बोहरा, ये बोहरा की बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। अब्दुल्ला अल बाही जो इमाम के दूसरे फर्जंद है, उसी बोहरा उनको मानते हैं कि इमामत जो है वो इनके नस्ल में थी। बहरहाल ये सब तफसील है। इसको अब्दुल्ला अल अख्तर या अब्दुल्ला अल बाहिर भी कहा जाता है। उम्मे फरवा आपकी बेटी, इमाम मूसा अलैहिस्सलाम आपका फर्जंद जो 12 इमामी है, इस्ना शरी है, उनके सिलसिले में नस्ल इमामत जो है वो इमाम मूसा अलैहिस्सलाम से आगे चली, और इमामत इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मूसा अलैहिस्सलाम को मिली। उसके बाद आपका एक फर्जंद है इसहाक, उसके बाद आपका एक फर्जंद है मोहम्मद दीबाज। मोहम्मद दीबाज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये दर हकीकत शाह चिराग के नाम से ईरान में मशहूर है। ईरान में एक रौजा है जिस पर अभी पिछले साल अटैक हुआ था, इस साल भी शायद अटैक हुआ था, 2 मरतबा अटैक हो चुके इस रौजे पे, इस हरम में। मोहम्मद दीबाज असल में उनका नाम मोहम्मद दीबाज शाह चिराग। लोग पूछते हैं कि इमाम के औलादों में शाह चिराग कहाँ से आ गए, ये तो फारसी नाम है, याद है। उनका असल नाम है मोहम्मद दीबाज, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की फर्जंद है मोहम्मद दीबाज, जिनका जो मशहूर है इस वक्त शाह चिराग के नाम से ईरान में। और आपके फर्जंद में अब्बास है, अली है, अस्मा बेटी है, और फातिमा आपकी बेटी है। ये आपके औलादों का नाम मैंने बता दिया।
और आपकी कुल उम्र जो है वो 65 साल है। 65 साल, ये मैंने इमाम जाफर सल्लल्लाहु की मुख्तसर सवान हयात आपको बता दिया। अब वो रवायत सुनिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग की दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी। वो कौन लोग हैं और कैसी दुआ है या कौन सी दुआ है जो कभी कबूल नहीं होगी। अब यहाँ से हमारी मेन गुफ्तगू शुरू। अब यहाँ से आप लोग पूरी तवज्जो दीजिए। आप जब किसी मकाम पर मजलिस पढ़ने जाएंगे, तकरीर करने जाएंगे, जब इन चीजों को बयान करेंगे, जो मेरा तजुर्बा है, तो लोग कान खड़े करके सुनते हैं। क्यों? लोगों को एक तशवीश रहती है कि कहीं हम इनमें से तो नहीं है जिनकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, या हमारी दुआ उन दुआओं में से तो नहीं है जिनके बारे में नबी ने कहा ये दुआ तुम्हारी कभी कबूल नहीं होगी, ये दुआ कभी मत मांगना। लिहाजा गौर कीजिएगा वो कौन लोग हैं और कैसी दुआ है, कौन सी दुआ है जो कभी कबूल नहीं होगी। तो इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद रसूल खुदा से नकल करते हुए फरमाते हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोगों की दुआएं कबूल न होंगी, कभी कबूल नहीं होंगी। कौन कौन? अब यहाँ 6 लोग हैं, गौर से सुनिएगा, यही आपकी गुफ्तगू है। एक वो शख्स जो अपने वालिदैन के खिलाफ दुआ करे, यानी वालिदैन के खिलाफ दुआ करनी, वालिदैन के लिए बददुआ करना। जैसे कोई औलाद, बच्चे अगर वालिदैन के खिलाफ बददुआ करे तो उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। याद रखिएगा, वालिदैन के खिलाफ बददुआ करना अल्लाह कभी गवार नहीं करता, कभी उसको कबूल नहीं करते। जहाँ खुदा ने कहा उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा, यानी कबूल करूंगा। लेकिन वालिदैन के खिलाफ अगर कोई दुआ मांगे तो उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मसलन किस तरह से लोग दुआ मांगते, देखिए उमूमन जो हमारे माशरे में देखा गया, माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के खातिर उन्हें डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं, कभी संजनिश करते हैं, कभी मारते भी हैं। तो कभी कभी नासमझ बच्चा जो है वो समझता है कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, बुरे हैं, मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं जो मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं। और कभी कभी वो कोसते भी हैं और बददुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे इनसे हमको निजात मिल जाए, अल्लाह करे इनका कुछ हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये गुजर जाए, आज़ुबिल्लाह आज़ुबिल्लाह। याद रखिएगा, ये जो दुआ कर रहा है अपने माँ बाप के खिलाफ कि अल्लाह मेरे वालिदैन गुजर जाए, ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी। दूसरे, ये तो मनफी थी। पॉजिटिव में कभी कभी ये वो होता है, नेक औलाद, याद रखिएगा, नेक औलाद कभी कभी मुंह से बददुआ नहीं करता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आती है। कैसे? तो सोचिए, ये जो रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कुरान की आयत है, इसकी तफसीर में आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी, जिनमें से एक बात याद रखिएगा। कहते हैं जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो सही हो जाते हैं, तो कहते हैं बुढ़ापा और बचपना एक जैसा हो जाता है। जिस तरह बचपने में बच्चे जिद करते हैं, तरह तरह की ख्वाहिशत करते हैं, उसी तरह से बुढ़ापे में जब आदमी बूढ़ा हो जाए या औरत बूढ़ी हो जाए तो उसकी भी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, तो वो मांग करती है, तरह की डिमांड करती है, कभी कभी जिद करती है, औरत जिद करती है, मर्द जिद करता है। तो उस सूरत में बच्चे जो नेक बच्चे, मैं उनकी बात करूँ, जो बुरे बच्चे उनकी बात नहीं करो, कभी कभी नेक बच्चे ऐसे माँ बाप की खिदमत करते हैं जो सही हो चुके हैं, उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है कि परवरदिगार कब इस मुसीबत से निजात मिलेगी, कब इस तकलीफ से निजात मिलेगी, कब हमको ये मेरा तकलीफ कब खत्म होगी, ये मेरी तकलीफ। यानी इस तरह से वो दिल दिल में सोचता रहता है। माँ बाप जब अपने बच्चे को पालते हैं, माँ बाप जब बच्चे को बड़े करते हैं, तो कदम कदम पे माँ बाप अल्लाह से दुआ मांगते जाते हैं, जबान से नहीं, दिल से, कि परवरदिगार मेरे बच्चे को सलामत रखना, परवरदिगार मेरे बच्चे की हिफाजत करना, इसे नजर से बचाना, परवरदिगार मेरे बच्चे को खुश रखना, आबाद रखना, मेरा बच्चा बड़ा हो, इसको तवील उम्र दे, जिंदगी दे। यानी माँ बाप जब बच्चे की खिदमत करते हैं, सोचिए यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते, मेरे आंखों में आंसू आ जाते जब मैं मरीज से पढ़ता हूँ कि माँ बाप उस वक्त हमारे दर्द को उन्होंने महसूस किया जब हम बोल नहीं सकते थे, उस वक्त हमारे तकलीफ को उन्होंने महसूस किया जब हम अपने से कुछ नहीं कर सकते थे। खुद अच्छा नहीं खाया, हमें अच्छा खिलाया, खुद अच्छा नहीं पहना, हमें अच्छा पहनाया, खुद अपने ख्वाहिशात को कुचल कर, मार कर हमारी ख्वाहिशात पूरी की। ये है माँ बाप। और बचपन में जब हम चलने लायक नहीं थे, उन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलाया। जब हम कुछ कहने लायक नहीं थे, हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हमारे दर्द को उन्होंने महसूस किया, हमारी जरूरतों को पूरी की। वही औलाद जब बड़े होकर माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप की जरूरत को पूरी नहीं करता, माँ बाप उस वक्त किस तरह तकलीफ महसूस करते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। जो साहिब औलाद है वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी सारी तकलीफें हमने बर्दाश्त की, जिंदगी तबाह खत्म कर दिया अपने औलाद के पीछे, और वही औलाद बुढ़ापे में यानी शादी होने के बाद अक्सर जो ऐसा देखा गया माहौल में कि फिर वो माँ बाप की नहीं सुनता, बल्कि शरीक हयात या बीवी की, हम बीवी की सुनने को मना नहीं कर रहे, लेकिन
आपकी जिंदगी में माँ बाप पहले है, बीवी बाद में है। लिहाजा अगर जायज हाजतें हो, उनकी जायज जायज मांग हो तो उसको पूरी कीजिए। याद रखिएगा, जो आप अपने माँ बाप के साथ सलूक करेंगे, वही सलूक आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। यूमुल लक यूमुल अलैक, याद रखिएगा, ये रवायत के जुमले हैं। हम जिस तरह से अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप के साथ ट्रीट करेंगे, पेश आएंगे, बिहेव करेंगे, हमारे बच्चे हमें देख के सीखेंगे कि माँ बाप के साथ ऐसे सलूक किया जाता है। उनकी खिदमत करेंगे तो बच्चा हमारे भी खिदमत करेंगे, हम उनकी जरूरत को पूरी करेंगे तो बच्चे भी जरूरत को पूरी करेंगे। इस तरह से देखिए, इसको कहते हैं मुकाफातुल अमल। इस दुनिया में मुकाफातुल अमल किसको कहा गया कि आप दूसरों के साथ जैसा करेंगे, सामने वाला भी आपके साथ वैसा करेगा। खास करके माँ बाप के साथ आप जो नेकी करेंगे वही आपके साथ करेगा। इसीलिए हमें हर नमाज में ये दुआ पढ़ने के लिए कहा गया, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर उसी तरह से तू रहम फरमा जिस तरह से बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया, जब हम बोल नहीं सकते। बल मुख्तसर ये कि औलाद की दुआ माँ बाप के खिलाफ तो भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये नबी ने कहा, मेरी उम्मत में जो भी अपने माँ बाप के खिलाफ दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। एक दूसरे दूसरे वो शख्स जो अपने कर्जदार के लिए बददुआ करे और उस कर्ज और उसने कर्ज देकर ना कोई तहरीर लिखवाई हो और ना कोई गवाह बनाया हो। याद रखिए, शरी हुक्म है। बस आपको ये भी बताते जाऊं, शरीयत ने कहा जब कोई डील करो, कोई मुआमला करो, खास करके लेन देन का और कर्ज का, तो उसको लिखो और गवाह बनाओ, क्योंकि कब इंसान की नीयत बदल जाए, कब आदमी बदल जाए, आप नहीं बता सकते। तो इसलिए कहा गया लिख के मामला करो, गवाह बनाओ। लेकिन कभी कभी होस्टिजन होते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। एक मैं शख्स को जानता हूँ, ये बहुत अच्छा इंसान है, कभी उसने झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया। अचानक उसको जरूरत हुई, उसने हमसे कुछ कर्ज मांगा, हमने ना लिखवाया ना गवाह बनाया। देखिए अक्सर होता है, क्या देखिए अक्सर शरीफ उन्नत लोग ऐसे करते हैं हमारे माशरे में, ना हमने गवाह बनाया ना लिखवाया। उसने कहा मौलाना साहब हमको 1,000 रुपया दे दीजिए, 2,000 रुपया दे दीजिए, हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको दे देंगे। हमने उस पर भरोसा करके उसको दे दिया। अब वो रुपया लेके बाहर निकला, ये छोटे अमाउंट नहीं, बड़े अमाउंट की बात करो। अक्सर जो सुनने में आता है, मसलन 1 लाख रुपया ले लिया, 2 लाख रुपया ले लिया और हमने भरोसे से उसको दे दिया। अब वो बाहर जाके बददुआ कर रहे मेरे खिलाफ कि अल्लाह करे ये जल्दी से गुजर जाए, खुदा करे ये बंदा मर जाए, ताकि मुझे इसका कर्ज लौटाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि ना मैंने लिखाया ना गवाह बनाया। लिहाजा मेरे पीछे डिमांड या मांग नहीं होगी, यानी कोई मांगेगा नहीं कर्ज, मेरे बच्चे भी नहीं मांग सकते क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। तो कहते हैं ये जो कर्ज लेके कर्जदार के खिलाफ जिसने कर्ज किया बददुआ करे कि वो मर जाए, रास्ते से हट जाए, कहीं गायब हो जाए, उसको कोई किडनैप कर ले, कोई उसको ले जाए, तो इसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। याद रखिएगा, जो कर्ज खा के खिलाफ, यानी जिसने कर्ज किया उसके खिलाफ अगर बददुआ करे तो नबी फरमाते उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। तीसरे वो शख्स जो अपनी जौजा के लिए बददुआ करे, मेरे खारान गौर से सुने और ब्रदर भी गौर से सुने, जिनकी शादी हो गई खास करके वो सुने, छोटे बच्चे सुन के रखे, इनको काम आएंगे बाद में, लेकिन उन लोगों के लिए जो शादीशुदा है। तीसरे वो शख्स जो अपने जौजा के लिए यानी बीवी के लिए बददुआ करे जबकि अल्लाह उसको छोड़ देने का पूरा इख्तियार उसको दे दिया है। एक मिसाल होता है, इसको कैसे हम समझे आपको, कभी कभी हमारे मुआशरे में होता है, बीवी मिजाज के मुताबिक नहीं होती, बीवी बात नहीं मानती, बीवी कैरेक्टर लेस है। आजकल जैसा मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप पे गैरों से नामहरमों से बातें करती है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ सब तफसील से बोलने की जरूरत नहीं है। मसलन मेरी बीवी अगर मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है तो मैं अब अल्लाह से बददुआ करूँ, खुदाया जल्दी से ये मर जाए ताकि मैं दूसरी शादी कर दूँ, जल्दी से मेरी जिंदगी से चली जाए ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, मैं दूसरी शादी कर दूँ। इस्लाम कहता है कि इसकी दुआ अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। उस शौहर की दुआ अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा जो अपनी बीवी के खिलाफ बददुआ करे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुमको इख्तियार दिया। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी पसंद के मुताबिक नहीं है, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं है, बिल्ला बच्चलन है, कोई भी आयब है, तो इस्लाम ने तुम्हें आखिरी वक्त में एक हलाल दिया, जो सबसे नापसंदीदा हलाल शाह है वो तलाक है। इस्लाम ने तुम्हें इख्तियार दिया, तुम तलाक देकर अपनी बीवी को अपनी जिंदगी से अलग कर सकते हो। तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जिंदगी जिएगी, तुम उसकी मौत की बदौलत क्यों करते हो? उसकी मौत क्यों मांग रहे हो खुदा से? कहते हैं ये दुआ अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। उसी तरह से मैं खारान के लिए भी कह रहा हूँ, ये शौहर पसंद नहीं है, शौहर बदमिजाज है, गुस्सा करता है, तकलीफ देता है, तो आप शौहर को खुला दे, आजादी ले लो, लेकिन शौहर के खिलाफ बददुआ मत करो, अल्लाह करिए जल्दी से मर जाए। या जिस तरह से आजकल के माहौल में हमारे सामने चूंकि
सेंट्रल जगह पे तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं कि किसी और से चक्कर है लड़की का, तो आपने माँ बाप ने कहीं और शादी कर दी, तो आप कुछ कर नहीं सकती, माँ बाप किसी के खाते तो दुआ मांगे, परवरदिगार मेरे शौहर को मौत दे दे, ये जल्दी से मर जाए ताकि मैं अपनी पसंदीदा यानी बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँ, जो भी पसंद है वो समझाने के कहते हैं ऐसी बीवी और ऐसे शौहर की दुआ कभी कबूल नहीं है जो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, आजाद हो सकते हैं किसी से, फिर भी वो दुआ करे तो नबी फरमाते हैं उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। इसको याद रखें अच्छी तरह से, ये सब पॉइंट्स मुआशरे में बोलिए, समझाइए लोगों को कि क्या हकीकत है। तो तीसरे वो शख्स जो अपनी ज़ौजा के लिए, बीवी के लिए बददुआ करे, जबकि अल्लाह ने उसे छोड़ने का पूरा पूरा इख्तियार दिया तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं करेगा। बीवी के खिलाफ कोई दुआ करे तो उसकी दुआ अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। चौथे और तीन बातें रहती है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, महसूस होंगे, और ये चीजें आप दूसरों को भी सुनाइए। अब सुनिए, चौथे जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, चौथे वो शख्स जो अपने घर में बैठा हो, खुदा से दुआ करे। मैं मिनवान पहले रवायत के जुमले पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी थोड़ी सी तशरीह करूंगा। चौथे वो शख्स जो अपने घर में बैठा खुदा से दुआ करे कि परवरदिगार मुझे रोजी दे, और घर से बाहर न निकले ताकि रोजी तलाश करे। ऐसे शख्स से अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने रोजी क्या मैंने रोजी तलाश करने के लिए तुझ पर राहें नहीं खोल दी हैं, और क्या तू अपने सही और सेहतमंद आज़ा के साथ रोए जमीन पर चलकर तलाश माश नहीं कर सकता, ताकि तेरे इस अमल से ये समझा जाए कि तूने मेरा हुक्म माना और दौड़ धूप की, तूने अपना काम अंजाम दिया, तूने सही और कोशिश करके हक अदा किया, अहले खाना पर अपने अहले खाना पर बार न बनकर रहे, बोझ बनकर न रहा। इस तेरी कोशिश के बाद रोजी का मुहैया करना मेरा काम है। कौन कह रहा है? खुदा। यहाँ से खुद सी है, कहते हैं बंदा तुम तलाश माश करो, जैसे कुरान में से आया है, तुम तलाश माश करो, तुम अपना हक अदा करो, अल्लाह अपना हक अदा करेगा। याद रखिए, हर एक किस्मत में जिसको रोजी रोटी की तंगी है वो गौर से सुने। इमाम खुमानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं, वो अपने दौर में ईरान में यानी किंग से भी बड़ा दर्जा रखते थे और हर चीजें उनकी खिदमत में थी, लेकिन उनके बारे में मिलता है उन्होंने कभी सरकारी माल, अवाम नास के माल में से अपना पैसा, अपना हक नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, खुद अपनी मेहनत की रोजी वो खाते थे, जो उनके बारे में मशहूर है। उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा, आगा आप बैतुल माल से या सरकारी खजाने से कोई शहरिया नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, आपका परिवार कैसे चलता है, आपका घर कैसे चलता है, तब उन्होंने वो आयत पढ़ी थी जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। और किसी को भी रोजी रोटी की तंगी हो तो उसको ये तरीका, ये अमल सिखाइए, ये बहुत मुजरब अमल है। रोजी रोटी की तंगी है तो हर नमाज के बाद, खास करके सुबह और इशा की नमाज के बाद, सुबह शाम, सुबह की नमाज के बाद पहले 3 मरतबा दुरूद पढ़े, फिर 3 मरतबा सूरह कुल अहद पढ़े, फिर सूरह तलाक के आयत नंबर 2 के 20 से 3 के एंड तक, जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, 2 के 20 में से 3 के एंड तक पढ़े, फिर 3 मरतबा सलवात पढ़े, फिर अल्लाह से रोजी मांगे, तो कहते उसको ऐसी जगह से रोजी मिलेगी जो उसके ध्यान में भी नहीं है, यानी रास्ता चलता हुआ पड़ा हुआ पैसा मिलेगा जो उसके गुमान में भी नहीं है। ऐसी जगह से अचानक उसको कोई आके पैसा दे के जाएगा, खुदा का फरिश्ता दोस्त बनकर आएगा, उसकी पहचान वाले की शक्ल में आएगा और आके उसको पैसा देके जाएगा, उसका ऐसा लगेगा मेरे किसी दोस्त ने मेरी मदद की, जबकि वो अल्लाह ने उसको रोजी भेज दिया। क्या देखिए इस अमल में, तो पहले 3 मरतबा सलवात पढ़े, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, फिर उसके बाद कहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन, वमन यत्तकिल्लाह, सूरह तलाक के आयत नंबर 2 से 3 के आखिर तक, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यहाँ तक पढ़ना। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए राह हमवार करता है। यजअल लहु मखरजन, मखरज यानी परेशानी से निकालने का रास्ता बना देता है। यजअल लहु मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से अल्लाह रोजी देता है जो उसके ध्यान में भी नहीं होता, उसके गुमान में भी नहीं होता कि आज मुझे यहाँ से रोजी मिलने वाली है या यहाँ से रोजी मिलने वाली है। याद रखिए, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे वही खुदा उसके लिए काफी है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, खुदा ने जो आपकी किस्मत में लिखा वो आपको पहुंचाएगा, आपको पहुंचा के देगा, पहुंचा देगा। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह
मिकाइल अपने साथियों के साथ रोजी बांटने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मिकाइल फरिश्ता को दे रखी। तो मिकाइल अपने साथियों के साथ रोजी बांटने आता है। सुबह सुबह अलग सहत वक्त ये रोजी तकसीम होने का वक्त होता है, जिस वक्त हमें नमाज तहज्जुद शब नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, जिसके बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई तहज्जुद नमाज पढ़े और कहे मैं आज भूखा हूँ, मुझे रोजी नहीं मिली, तो झूठा है, याद रखिएगा। तो उस वक्त रोजी बांटने आता है। तो जब बंदा सोया रहता है तो मिकाइल फरिश्ता अल्लाह से कहता है परवरदिगार लगता है तेरे इस बंदे को आज रोजी की जरूरत नहीं है, तूने इसके लिए रोजी भेजा लेकिन ये लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रवायत में है सुबह तक पूरे आफ्ताब तक कभी कभी वो फरिश्ते जो मिकाइल के साथ जनाब मिकाइल के साथ रोजी बांटने आते हैं पूरे आफ्ताब तक इंतजार करते हैं। जब ये बंदा नहीं उठता है तब वो कहता है परवरदिगार आज ये अपना रोजी नहीं लेना चाहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उस वक्त खुदा फरिश्ते से कहता है, सुनिए रवायत, उस वक्त खुदा फरिश्ते से कहता है मेरे पास इबादत करने के लिए, मेरे पास बंदगी के लिए, इबादत करने के लिए इसके अलावा और भी बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन इसके पास रोजी देने के लिए मेरे सवा कोई खुदा नहीं, इसके पास मेरे सवा रोजी देने वाला कोई नहीं है। कितना करीम है वो रब, उसके हो रहा है कि अल्लाह उसको रोजी दे। तो अगर बंदा मेहनत करे, कोशिश करे तो अल्लाह रोजी क्यों नहीं देगा। तो इस आयत में है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे वही खुदा उसके लिए काफी है। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर एक की किस्मत में एक मिकदार मुअय्यन कर दिया। तो मैंने इस आयत को इसलिए कोट किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इस जुमले में है नबी फरमाते कोई शख्स घर बैठा रहे और रोजी मांगता रहे। बहुत सारे लोग आप जानते हैं मस्जिद में जाके, इमाम बारगाह में जाके, दरगाह में जाके जरी पकड़ के, अलम पकड़ के रोजी मांगता रहेगा, लेकिन वो बंदा मेहनत नहीं करता। ये इसका ये कौम कि तुम बेशक रोजे में जाओ, बेशक जरी पे जाओ, बेशक अलम पकड़ के दुआ मांगो, वो वसीला है, लेकिन साथ में मेहनत जरूरी है। रोजी तलाश करो, जहाँ रोजी के रास्ते उधर जाओ। तुम घर बैठे इमाम बाड़े में बैठ के, मस्जिद में बैठ के सिर्फ दुआ मांगते रहो परवरदिगार मुझे मेरे लिए रोजी भेज, तो कहते हैं नबी फरमाते इसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। जो बंदा कोशिश नहीं करेगा, रोजी तलाश नहीं करेगा, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। पांचवें जिसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, अब सुनिए, पांचवें वो शख्स जिसको अल्लाह ने माले कसीर से नवाजा था, उसने सब खर्च कर दिया और अब अल्लाह से दुआ गो है कि मुझे रोजी अता फरमा, तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या मैंने तुझे बहुत सी रोजी नहीं दी थी, तूने एतदाल से काम ना लिया, सिफारिश से काम ना लिया, मेरे हुक्म की मुखालिफत की, मैंने इसराफ से मना किया था, तूने हुक्म फजूली से काम लिया, ये तेरा कसूर है, मेरे आता में कोई कमी नहीं है। अब सोचिए रवायत क्या कह रहे हैं कि एक आदमी के पास रोज फरावानी थी, अल्लाह ने उसको बहुत अता किया, उसने ऐश इश्रत की फजूल खर्ची में उसी दे ताकि मैं तेरे राह में खर्च कर सकूं, दूसरों को दे सकूं। जब था तब किसी को नहीं दिया, तब आय खुदा में खर्च नहीं किया, नेक काम में खर्च नहीं किया, सिर्फ आयश इश्रत में फजूलियत में खर्च करता रहा। अब पैसा खत्म हो गया तो कह रहा है अल्लाह मुझे रोजी दे, पैसा दे, ताकि मैं दीन के काम में खर्च कर सकूं, मस्जिद बना सकूं, इमाम बड़ा बना सकूं, ये वो जो भी कहते हैं अल्लाह इसकी दुआ कभी कबूल नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह कहता है कि जब तेरे पास था तूने कुछ नहीं दिया, जब तू दे सकता था तब तू कुछ नहीं दिया, और अब खत्म हो गया तो अब तू कह रहे अब देख। क्या तेरा भरोसा है कि अभी मिलेगा फिर तो अपने लिए खर्च करेगा। और जैसे कि हमने कहा दुआ को कबूल होने के वजूहात में से हमने बताया था पॉजिटिव कि अल्लाह इसलिए नहीं देता है कि अल्लाह को पता है इस बंदे को दूंगा ये सब खर्च कर डालेगा, ये जो मस्जिद बनाने के लिए कह रहे हैं, इमामबाड़ा बनाने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं बनाएगा क्योंकि शैतान इसको बहका देगा, दूसरे ट्रक पे लगा देगा। तो नबी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा जिसको रोजी अल्लाह ने दी, रिस्क दिया, दौलत दी, लेकिन उसने राह खुदा में खर्च नहीं किया और पैसा खर्च हो गया, पैसा खत्म हो गया, अब मांग रहे हैं मुझे दे ताकि मैं राह खुदा में खर्च करूं। अब आखिरी बात और आपकी सहमत तमाम, छठे वो शख्स जो अपने ऐसे हुकूक अदा न करे और खुदा से दुआ मांगे। ये मुआशरे को समझाना बहुत जरूरी है। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अजादारी में, मैं खर्च करने में मना नहीं करता हूँ, इमाम हुसैन किसी का मखरूज नहीं रहते, जितना इमाम हुसैन नाम का आप खर्च करेंगे, जैसे कि सहीफतुल इस्तिस्ना या अस्फारुल इस्तिस्ना, जनाब मूसा को जो 5 सहीफे या 5 अस्फार दिए गए जिसके मजमूए को तौरात कहा जाता है, तो उसमें सहीफतुल इस्तिस्ना में खुदा ने कहा जनाब मूसा से आखिरी नमी के बारे में पेशिंगोई की, आशूरे की पेशिंगोई की,
जो उम्मत मोहम्मद को फजीलत दी गई, उसकी सारी चीजें दास्तान उसके अंदर लिखी हुई है। वहां पर लिखा है कि वाक़या करबला, यानी जहां नबी के नवासे को कत्ल किया जाएगा, उस दिन को याद जो करेगा, यानी आशुरा मनाएगा, अज़ादरी करेगा, और उस राह में जो 1 दिरहम खर्च करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं उस 1 दिरहम के बदले में उसको इस दुनिया में 70 दिरहम अता करूंगा। आखिरत में तो मुआवजा जो मिलेगा अजर और सवाब, वो बात की बात है। जो दुनिया में इमाम हुसैन के नाम पे 1 दिरहम खर्च करेगा, अल्लाह का वादा है कि उसको 70 दिरहम अता करूंगा 1 दिरहम के बदले में। इसको हुसैन बख्तियार साहब ने भी अपने तफसीर में लिखा बहुत तफसील से, और अल्लाह उसके 70 गुनाह माफ करेगा और उसके 70 नेकियों में इजाफा करेगा। 1 दिरहम राह खुदा में इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करने का ये अजर है दुनिया में, याद रखिएगा। तो इमाम हुसैन किसी को मफरूज किसी का मफरूज नहीं है। यहाँ पर वाक़या है, लेकिन आज हम नहीं सुना सकते, कभी और आपको सुनाऊंगा। अब यहाँ पर वैसे इतना बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग राह खुदा में खर्च करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पे, असदर के नाम पे खर्च करते हैं, लेकिन वो खुम्स और ज़कात नहीं अदा करते। याद रखिए, खुम्स और ज़कात तो वाजिब है, उसके बाद जो हम दान खैरात ये जो भी नेकियां करती है, ये सब मुस्तहब है। वाजिब पहले अदा करना है, रिश्तेदारों का हक पहले देना है, भाई बहनों का हक पहले देना है। कितने बार ऐसे शिकायत हमारे सामने आते हैं, मौलाना साहब ये बंदा शोहरत के लिए, नाम के लिए इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें करता है, बिरयानी खिलाता है, क्या क्या खिलाता है, और वही उसके सगे भाई बहन परेशान है, तकलीफ में है, जिसकी ये मदद नहीं करता, जिसका हक ये अदा नहीं करता। तो याद रखिएगा, इसको इसका कुछ अजर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो, तब राह खुदा में खर्च करो। इसीलिए कहा कि ये जो फितरा हम निकालते हैं ना, फितरा आगे सबसे पहले तुम्हारा आइसो अकारिक में देखो कौन जरूरतमंद है, कौन रिश्तेदार गरीब है, परेशान हाल है, जिसकी ईद खटाई में है, जो अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना फराहम नहीं कर पा रहे, ईद के दिन भी वो दाल चावल खा रहा है, तकलीफ में है। तो कहते हैं जरूरतमंद रिश्तेदार को पहले फितरा दो, पहले उनको दो, और के देने की जरूरत नहीं, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस मत पहुंचाओ, बल्कि उसको तोहफा कह के दो। अल्लाह तो जानता है आप क्या दे रहे हैं, तोहफा कह के, गिफ्ट कह के, बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ लेके आया था, कुछ भी कह के रिश्तेदारों को फितरा देने का हुक्म पहले है। उसके बाद पड़ोसी, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप आप दूसरे को दे सकते हैं। याद रखिए, ये सब शरीय हुक्म से नबी फरमाते हैं, जो अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का हक अदा न करे और खुदा से दुआ मांगे, अल्लाह इसकी दुआ कभी कबूल नहीं करेगा। अभी आप समझ गए कि कितने लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, क्यों? क्योंकि वो दूसरों के हक को अदा नहीं करते, इसलिए अल्लाह भी उनकी दुआ को कबूल नहीं करता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि इन बातों से आप लोगों ने इस्तेफादा किया होगा। अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यासिन भाई, हमारी बातें क्लियर थी, साफ थी, कुछ माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया।